All of you welcome again in SPI Preparation Course 2024. Today is day 20. All online viewers and offline both pay attention. Today's guest lecture is very important because today is Sanidhya Rathod. He is our guest and he has cleared SPI exam as well as SSB interview. Therefore, his guidance is very important to us. Now, I would request to our Commandant Sir to felicit Sanidhya by offering a bouquet. Welcome. Thank you. Thank you, sir. To say a few words, Sanidhya has already proved that he could clear SPI entrance exam and the interview also. Now, what you can take from him, the tips, how he prepared for his entrance written exam, and what was his experience, where the problem is, because a person who has traveled that path and succeeded is always a good guide. So take maximum benefit out of this session. Ask your doubts towards the end of the session. You may have different doubts and similar thing he might have experienced, but more of interaction is expected. Then everyone's mind will be clear before appearing for this exam. Because one person asking doubt, that doubt may be applicable to another 10 people. So it generates a lot of interest and it solves a lot of students' doubt. So please ask questions in the end, and I hope you will enjoy this session. I will hand over to Sanidhya now. Sanidhya will do justice to the interactive session. Okay, thank you. First of all, Jai Hind to everyone. See, I am Sanidhya and I have cracked my SPI exam last year along with interview, and today I am here to guide you all. So see, first I will remind you that each and every one of you have immense potential and great talent within yourselves. And if you believe in yourselves, then you can definitely crack not only SPI but NDA too. See, SPI is not only about academic knowledge, it's about your own complete lifestyle. It's your own personality. It's about your dedication, determination and discipline. You need not to be focusing only on academic knowledge. Overall body personality should be developed. See, your SPI exam happens in 2 steps. First is your written exam, which contain 150 questions. One mark for each question. But you have to remember that here there is negative marking. If you score 1 mark for a right question, you will lose half mark for a wrong question. So, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं करना है. क्या करना है? सोच के करना है. जो करना है सब सोच के करना. जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही करना. जो क्वेश्चन नहीं आता वो छोड़ देना. उसमें दिमाग नहीं लगाना. और जिन बच्चों का नहीं होता उनका यही कारण रहता है. 75 क्वेश्चन जम जाते हैं, 75 क्वेश्चन नहीं जमते, लेकिन वहां पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते. वो नहीं करना. अब देखो, सबसे पहले 75 क्वेश्चंस मैथ्स के रहते. अब मैथ्स में तुम्हारे सिर्फ 4 से 5 चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी. ये 6 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे. मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है. मेरे क्वेश्चन पेपर में सब यही था. अभी उसके बाद में आते हैं इंग्लिश में सिर्फ 25 क्वेश्चंस रहते हैं. 25 क्वेश्चंस अगर आप इफ यू स्पीक इंग्लिश इन योर डेली लाइफस्टाइल and you know basic grammar such as nouns, pronouns, conjunctions, simile, personifications, then metaphors. These are all basic things. They ask you in exam. And there are some questions like fill in the blanks, error and correction, rearrangement of the questions. See, rearrangement of the words to make a sentence is very easy. You know what are the words, and the sentences through which it can be formed are very easy. And you have options. You know what is the answer. Just you have to make it right. If you do this English and maths portion, then more than 60% of your work is done. And also your selection in your interview test also reaches 70 to 75%. Because see, after that there is general knowledge, current affairs, defense questions. These are all very vast portions. They require immense reading. But
maths, science, and English. These three subjects are which which require minimum amount of time and also require less effort as compared to others. Because if you see at general knowledge, if you see at current affairs, there are many things happening around us for which we have to be aware. These are very much important, but mainly for interview. But our first target has to be written exam. So first you focus on your written exam. For written exam, if you focus on mainly three things: what? Maths, that's 6 chapters. English, your general knowledge about English, nouns, pronouns, etc. And your science. For your science, just read your own textbook. If you are from CBSE or if you are from state board, read only what you have got from your school and what you have studied for your boards exam, because each and everything that will be asked will be from same textbook. Guarantee, it is my guarantee that if you read that again and again rather than going and studying fat books, it will not help you anything. And last 10 to 12 days are remaining, so your last practice has to be done of maths. You solve the questions which have been you solving from long time. Don't solve new questions now. Master it what you have solved. Now see, the path you have chosen is not very easy. It is ground reality that you have to be disciplined, you have to be determined, and also you have to do hard work throughout your life. It's not like that I will crack my SPI and then I have to do nothing. No, SPI is not like that. As for you are, keep in mind that you are not preparing for SPI, you are preparing for NDA. NDA is your top priority. It has to be your top priority. Now see, if you focus on these main three things, then your selection is 100% done in your written exam. Now there comes interview. See, interview is a thing which is actually difficult. It is a big obstacle for your success. But each obstacle in your life is a one step ahead to your success. You have to learn from the obstacle and go ahead. See, according to me, there were 6 to 7 people around me. Everyone were more than 70 years of age. Everyone was retired army official. What they really asked was not actually academic. What really tested was my confidence, my self-belief. They didn't ask me anything which was not irrelevant. Everything, each and every question was relevant, and they tried to fumble me. They asked me simple question such as what is the value of sin 30. Everyone knows that it is 1/2. Everyone knows that it is 1/2, but they will continuously ask you, are you sure? Are you sure whether it is yes or not? This is a point of determination. If you are confident enough that you know what you are doing and what do you know is correct, then no one can stop you from being selecting not only in SPI but also in NDA. But you have to be confident. You have to be confident. बस. Now see, अगर SPI में बात करें इंटरव्यू की, इंटरव्यू में 6 से 7 लोग रहते. अब उन्होंने मुझे कौन से क्वेश्चन पूछे थे मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया, जो कि सबसे बेस्ट होना चाहिए. इंट्रोडक्शन अब आपकी एक इमेज उनके मन में क्रिएट करता है, आप कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, बस. और फिर उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन चालू किए. अब क्वेश्चन सुनो, आपको अपने को लगता है कि वो डिफेंस के क्वेश्चन पूछेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, ऐसा नहीं रहता. वो साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे और SST के क्वेश्चन पूछेंगे. अब सबसे पहले मुझे पूछा कि सुनामी क्या रहती है. अब सुनामी सबको मालूम है कि अगर अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स रहते, वो घूमते, तो फिर सुनामी आती है और वो डिस्ट्रक्शन कॉज करती है. ये सबको मालूम है. अब वो ये मालूम सबको, लेकिन वो ये चेक करती है कि आपको खुद में कितना बिलीव है, आप खुद में कितना खुद को कितना जानते हो, आपको खुद की कमियां मालूम है कि नहीं, आप उसको ओवरकम कैसे करते हो, वो सब ये चेक करते हैं. और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे. फिजिक्स के जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या रहता है, फिर उसके बाद में केपलर के लॉ पूछे, फिर उसके बाद में न्यूटन के लॉ पूछे, और फिर उसके बाद में मैथ्स के नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे. अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, वो पेपर में तो काम का है ही, लेकिन वो मेन जब इंटरव्यू लेते हैं वहाँ पे भी बहुत काम का है. वहाँ पे सिंपल फॉर्मूले पूछेंगे कि सम 4 टर्म है, उनका सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, n into n plus 1/2 n नंबर, वो सब. उसके बाद में फिर उन्होंने आपको डिफेंस के बारे में बस इतना मालूम होना चाहिए कि अपने CDS कौन थे, अपने चीफ कौन थे, नेवी के चीफ कौन थे, फिर उसके बाद एयरफोर्स के चीफ कौन थे, आर्मी के चीफ कौन थे. इनके नाम अगर भी आपको मालूम रहे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन कन्फर्म है, आप अगर इंटरव्यू में पास हो गए, आपको ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि CDS कौन थे, चीफ कौन थे, आर्मी के सबसे ऊपर वाली पोस्ट कौन सी है. फिर आपको पूरी हायरार्की मालूम होनी चाहिए, एकदम नीचे से लेके ऊपर तक, बटालियन से लेके फील्ड मार्शल तक सब मालूम होना चाहिए. डिफेंस के बारे में बस इतनी नॉलेज है. और करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, क्योंकि मेरा ही एक्सपीरियंस थे, मेरे 2-3 दोस्त भी थे,
और मैंने अभी एक भैया से पूछ के ही किया था। मेरे पास एक क्वेश्चंस की पीडीएफ है, मैं बोरीकर सर को भेज दूंगा, आप बस उतना चेक कर लो। सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है और मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से ही पूछे थे, कुछ नहीं ज़्यादा, 30 से 30 to 40 क्वेश्चन है। उतना अगर कर लोगे आप तो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। बस अब करना तो इतना ही है, बस इसको रिपीट करते जाना है। अब तो आपका जो आपने अभी क्वेश्चंस किए होंगे, जो क्वेश्चन पेपर किए, खुद का एनालिसिस करो, आपके कितने गलत है, आपके कितने सही है। अगर आपके ज़्यादातर सही होंगे तो उसको बार बार नहीं करना, जो क्वेश्चन गलत है उसको बार बार सॉल्व करो। अपना देखो कि अपन कहाँ पे अभी अपन कहाँ पे स्टैंड करते। और अभी 4 से 5 दिन है आपके पास। अब 4 से 5 दिन तक आप खाली आपके जो वीक पॉइंट्स है उस पर फोकस करो। जितने वीक पॉइंट है अगर उस पर फोकस करा और वो अगर अच्छे से अचीव कर लिए तो आखिर में बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि एसपीआई में कैसा है कि बहुत सारे लोग है ना बाहर से आते हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम देते हैं, जो प्रिपेयर नहीं करते। मैं भी वैसे ही था, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, कोई क्लास नहीं की, सीधा पेपर के लिए गया था। लेकिन पेपर के लिए मैं खाली 10th की नॉलेज पे गया था। अब 10th की नॉलेज अब है कि 8th 10th और 10th का सबका पूछते, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन 10th का रहता है। इसलिए जो फोकस कर रहे हो तो 10th पे ही करो। स्टेट बोर्ड की बुक है, स्टेट बोर्ड की बुक बार बार पढ़ो। साइंस की, इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक में से वोकेबलरी ढूंढो। अब इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक में चैप्टर्स रहते हैं। चैप्टर जब पढ़ते हो तो वोकेबलरी में कुछ अच्छे वर्ड्स आते हैं। वो खाली चैप्टर के लिए नहीं रहते, अपने लाइफ के लिए रहते। अपने लाइफ में उसको इम्प्लाई करो। अगर इम्प्लाई करोगे और अगर इंटरव्यू में अगर वो झलकेगा तो फिर उनके लिए उनके मन में जो इमेज आपके लिए वो और बढ़ेगी और फिर और अच्छा हो जाएगा। बस अगर आप इतना फॉलो करोगे आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर तो करोगे ही, लेकिन आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। अगर आपके अभी कोई डाउट रहे तो फिर पूछो। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? कोई साइंस से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, केमिस्ट्री? हाँ, अगर साइंस में देखा, साइंस में अगर बायो में देखो तो बायो के मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं रहते, एनडीए में भी और एसपीआई में भी। मेन क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से। अगर केमिस्ट्री में देखना है तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस करो कार्बन एंड कंपाउंड, एसिड एंड बेसिस पे। एसिड एंड बेसिस में भी बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अब मुझे बोरीकर सर ने बताया कि आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो, बोल के ज़रूरत नहीं है उसकी। आपके पास जो बुक्स है अभी, जो आपके स्कूल के बुक्स है, आपने जो स्कूल के लिए तैयारी की है, बस उसके लिए अगर अच्छे से जो तैयारी उसके लिए की, अगर वही इसके लिए भी की, आपका एसपीआई का रिटन एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। हाँ, You didn't ask in an interview why SPI you choose which are the shapes of your name. no, they didn't ask me. Actually, they didn't ask you about anything. They think that if you have come there, then it is your aim to become the to crack that SPI exam. Any more questions? Ask your questions and all the doubts because it will be the last chance. अभी इसके बाद और कोई गेस्ट नहीं आएगा जो आपको एसपीआई प्रिपरेशन के बारे में जानकारी देगा। जो भी आपके माइंड में जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग इंटरव्यू, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं अभी। मैथ्स में एवरेज प्रॉफिट लॉस में मतलब वो चैप्टर के क्या प्रोपोर्शन है? मतलब नहीं, देखो, अगर आप सही में देखो, अगर एसपीआई का एग्जाम मेरा पेपर और मेरे पिछले का भी पेपर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एसपीसीपी, वो बहुत कम रहते क्वेश्चन। और अगर एसपीआई में अगर अच्छा स्कोर करना है मैथ्स में तो मेन फोकस करो ट्रिग्नोमेट्री पे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, और फिर उसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3-4 चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से कर ली तो फिर मैथ्स का भी आधा क्वेश्चन हो जाते हैं। आई थिंक जो सिलेबस मॉर्निंग में दिया था वही टॉपिक्स है। दैट्स व्हाई ट्राई टू ट्रस्ट ऑन योर टीम आल्सो दैट व्हिच थिंग्स वी आर टेलिंग टू यू। Yes. That same things हाँ. I am explaining them again and again. Try to focus on the syllabus of 9-10. Yes, you have came here to crack your SPI exam, and every teacher here is very good in their own subjects. Therefore, if you want to really crack, then you have to believe in everyone here. स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चंस बड़े बड़े आते तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, तो उसमें देखो, इसमें क्या करना रहता, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं मालूम,
और उसके बाद में उसमें फॉर्मूले भी रहते हैं उसमें, और उस पर फिर वो नंबर जो डालते हैं उसमें भी बहुत सोचना पड़ता। ये क्वेश्चन में सर्कल करके रखो और पूरा पेपर पहले सॉल्व करो। अगर आप सेक्शन ए पहले सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स का पेपर पहले सॉल्व कर रहे हो, तो पूरा पहले मैथ्स का पेपर सॉल्व करो और फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है अगर टाइम बचता है तो सॉल्व करो, अगर नहीं तो फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बोलो। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट हो रहा है अच्छे से तो फिर सिलेक्ट भी हो जाओगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, वो फिर वो प्रोबेबिलिटी में क्यूब के क्वेश्चंस रहते हैं, कॉइन के क्वेश्चन रहते हैं, वो भी टाइम लेते हैं बहुत। अगर अपने पास अपने 3 ही घंटे 150 क्वेश्चन है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, तो फिर उसके लिए 1 मिनट में क्वेश्चन कर जो हो सकता है पहले वो करना। क्योंकि कैसा है, बाद में जो सेकंड गैट का जो पेपर है उसमें सारे क्वेश्चन फैक्चुअल रहते हैं, आप देखो कि टिक मारोगे, और उस वो पूरा करने के बाद अगर टाइम बचा तो फिर स्टैटिस्टिक्स पे जाने का और फिर प्रोबेबिलिटी पे। यस, इंटरव्यूअर को मतलब खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देना कि जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? देखो सबसे पहले आप अपना खुद का बोल्ड रहना चाहिए, आवाज बोल्ड रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपका आप कुछ नहीं रहता, खाली नाम रहता है और आपने प्रिपेयरिंग कैसी की कुछ नहीं, खाली आपका नाम रहता है, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो रहता है, आपकी क्या हॉबीज रहती है वो बताना रहता है। अब उसमें आप वो ये चेक करते हैं कि आपका खुद पे बिलीव कितना है, आप खुद पे कितना ट्रस्ट करते हो, आपको खुद की कमियां मालूम है कि नहीं, आपको कैसे अचीव करते हो, उसके ऊपर उसको ऊपर कैसे जाते हो। इसलिए आवाज में कॉन्फिडेंस रहना और आवाज में बोल्डनेस रहना, मतलब उनके मन में ये आना चाहिए कि हाँ ये बच्चा है जो कर सकता है। क्योंकि जिसको खुद पे भरोसा नहीं तो आर्मी कैसे उस पर भरोसा करेगी। क्योंकि आखिरकार बनना तो आर्मी ऑफिशियल है ना, जिसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन चाहिए और कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए मन में, वो सबसे मेन है। कॉन्फिडेंस रहे तो फिर सब होता। देखा फिर से, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, एंड व्हाट आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, ऑफिसर लाइक आवाज निकालो आप, ऑफिसर लाइक आवाज चाहिए मुझे, यस सर, नो सर। तो आपकी आवाज जो है वो उसी तरह की होनी चाहिए, क्वेश्चन भी उसी तरह के होनी चाहिए। एनी मोर क्वेश्चन? एनीबॉडी वन? ओके, थैंक यू Sanidhya for joining us and for giving a very valuable information to us. And Sanidhya is the son of our principal also, and again I am thankful. Thank you. Okay, thank you very much.